Welcome students, RPS Public School Jhapama branch, and I just appeared before you as usual. We have just attended this class to start the new chapter, that is Art Rocks. Students, one thing you tell me, how can you trigger the pistol or rifle without bullet? You will be surprised to say how this questions asking to me, sir. Why this type of questions, sir, asked me? This is not related with this chapter. Why this so happening with this moment, this session, this class? So one thing I have to tell you, that let me clear now. Why did I just propose this thing before starting the chapter, new chapter, that is Art Rocks. Students, you know, if you are having pistol or rifle, without bullet you can't trigger them. You can't just, because without bullet there is no, that is meaningless to having this will be meaningless for having this type of weapons, because without bullet there is no identity of rifle and pistols. Why this is happening? So why am this is telling this one? Because I am just correlate this moment with your keywords. I just written here keywords. Keywords means without having your vocabulary power, or you are going through the book of this chapter thoroughly, if you are not related with, you are not very going to be consult with your vocabularies in an elaborative manner, you can't just going to be describe all the things at a time. बिना vocabulary power का हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम एक दिशाहीन के तरफ बढ़ रहे हैं, दिशाहीन पढ़ाई हो रही है हमारी, एक एमलेस हम कर रहे हैं, पढ़ाई हो रही है हमारी। तो ये सब स्टार्ट करने के पहले मैं एक और टिप्स देना चाहूँगा आप लोगों को, कि कोई भी चैप्टर शुरू करने के पहले आप उसके वोकेबलरीज को अच्छी तरह से जान लें। तो जब आप उसको पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा था शुरू में कि आपके पास पिस्टल है, राइफल है, लेट मी एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो। आपके पास पिस्टल है, राइफल है और आपके पास बुलेट नहीं है, तो आप कैसे चलाएंगे उसको? सिमिलर थिंग है कि अगर आपके पास आप पढ़ रहे हैं और आप इसका मीनिंग नहीं ठीक से जानते हैं, वर्ड का जो भी दिया हुआ है, तो आप कैसे उस कहानी को, स्टोरी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और कैसे थॉरली पढ़ पाएंगे? मैं तो यहाँ समराइज मैनर में आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन जब आप होम लेवल पे आप उसको पढ़ेंगे एक इलाबोरेटिव मैनर में, देन हाउ कुड यू एक्सेस देम वेरी कॉन्फिडेंटली? तो इसके लिए आपको वोकेबलरीज पावर को, कीवर्ड्स को एक स्टॉक में रखना है, वो जो आप इस चैप्टर से कंसर्न है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वोकेबलरीज को एकदम कलेक्शन करते जाइए, याद करते जाइए अदर थिंग्स का, वैसा नहीं। आप चैप्टर से रिलेटेड जो भी है वोकेबलरीज, उसको आप कलेक्शन करें, उसका मीनिंग जानें, फिर उसके बाद उसका पढ़ाई करेंगे तो उसका एक अलग ही अंदाज होगा। ऐसे मैं यहाँ समराइज मैनर में आपको बता दूंगा मैं, दैट्स अदर थिंग, बट you will have to do this at your own, because this is online classes and it is not possible to lecture the class one by line of your chapters concerning whatever the chapter is there. I am not mentioning the particular chapters, but all chapters I am talking about this one. So keywords plays a very magnificent role in your study.
So before starting art rocks, I have to say about some keywords concerning this one. Just listen carefully. This is art rocks. The chapter's name, art rocks. You see, section 1, art rocks. This art rocks is written by whom? Rakshanda Zalil. What's name here? Rakshanda Zalil. Rakshananda Zalil is a very famous writer and historian also. And she is born on 1963 in Delhi. And from the Hindu, you see that the Hindu newspaper also, weekly also, that things are concerning the art rocks has been written there, and that was the extraction from this one. So she is a very famous writer, Rakshanda Zalil. Her starting education was in Delhi University, and she is very well-known writer, Indian writer. So, just art rocks. She has written here art rocks. First one, हम जान गए इसके राइटर्स के नाम क्या है, और उन्होंने क्या लिखा, आर्ट रॉक्स की भी. अब now you see what is art rocks, why this title has been assigned here. I just told you earlier, whenever any title is assigned in your book, there is a vast meaning around this one. I will summarize this chapter in later classes, after this class, in the second moments there. The first moment, this one, I am going to concerning about the keywords concerning art rocks. Okay. So, art rocks means art. Art, you see the kala. Rocks क्या होता है? चट्टान. Literally meanings, you very much familiar with this one. Art means kala. Rocks means चट्टान. यानी चट्टान पर कलाकृति. चट्टान में रॉक्स पर कोई आर्ट है, आर्ट किया हुआ है, कलाकृति की हुई है, तो जरूर इस बात नेचुरल है कि ये उसी से कंसर्निंग कुछ बातें होंगी इसमें कहानी में. तो ये आर्ट रॉक्स आखिर क्यों ऐसा इसका हेडिंग दिया गया? व्हाई दिस हेडिंग असाइन्ड हियर? बिकॉज व्हेनेवर दिस प्लेस आर्ट रॉक्स इज कंसर्निंग विथ योर भीमपेटका. Now you will tell me, so what is Bhimpetka? I will explain this one. Don't worry about this, Bhimpetka. तो आर्ट रॉक्स इज रिलेटेड विद भीमपेटका. यानी भीमपेटका एक जगह है जहां पे गुफा है, और उस गुफा के अंदर में वहां पर क्या बनाया हुआ है? वहां पर बहुत सारे फिगर्स बनाए हुए हैं जानवर्स के, जितने भी so many animals, birds, elephants, horses like this one, rhinoceros, all this has been sketched there, and there is also painting, very magnificent painting. You will be surprised to know after 30,000 years, 30,000 वर्षों के बाद भी वो पेंटिंग अभी भी उसके अंदर में उस तरह का पेंटिंग बना हुआ है. इट विल बी वेरी वेरी, यू कैन सी अमेजिंग थिंग्स देयर. सो नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द आर्ट रॉक्स. ओके, आर्ट रॉक्स में जब आप पढ़ेंगे तो आप एक वर्ड आएगा ट्रेवलॉग. इसको क्या पढ़ते हैं? देखिए, पहले आपको प्रोनाउंसिएशन भी देखना है कि कैसे हम उसको प्रोनाउंस करेंगे, कैसे उसको उच्चारण करेंगे. तो प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा हमारा? ट्रेवलॉग. दैट इज ट्रेवलॉग. ट्रेवलॉग. ट्रेवलॉग, व्हाट इज ट्रेवलॉग? यू कैन मे आस्क नाउ. दिस ट्रेवलॉग इज अ बुक. देयर इज अ बुक, पीस ऑफ राइटिंग फिल्म अबाउट ट्रेवल. अगर कोई भी, जैसे कोई भी, अगर आप ही ट्रैवल करते हैं और बहुत सारे हिस्ट्री उसके बारे में स्टोरी लिखते हैं कि मैं ट्रैवल किया, मैं ट्रेन में गया,
मैं पर्टिकुलर प्लेस में हमने विजिट किया, और ये सारी चीजें उसको आप एक किताब के रूप में, एक कहानी के रूप में उसको लिख देते हैं, तो क्या होता है, क्या कहलाता है, ट्रेवलॉग। मान लीजिए आपने किसी हिस्टोरिकल प्लेस, आगरा गए थे आप, आगरा आप जाते हैं, आगरा के विषय में आप वहाँ लिखते हैं, तो कैसे आप घर से निकले, ट्रेवल किए ट्रेन में, वहाँ पहुँचे, वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, ये सारा यात्रा वृत्तांत जो आप लिखते हैं कहानी के रूप में, उसको हम बोलते हैं ट्रेवलॉग। अब आप फैमिलियर हो गए होंगे किस तरह से, व्हाट डज इट मीन देयर ट्रेवलॉग। तो इससे एक हम कोई भी सेंटेंस, फर्स्ट यू नो द वर्ड्स एंड मेक द सेंटेंस एट योर ओन। ये जरूरी नहीं कि जो हमने यहाँ सेंटेंस लिखा वही सेंटेंस, आप भी बहुत तरह का सेंटेंस इसे बना सकते हैं। तो मैंने एक उदाहरण सिर्फ दिया एग्जाम्पल में कि ट्रेवलॉग आप कैसे सेंटेंस में उसको कन्वर्ट करेंगे। सो दिस वन, ट्रेवलॉग इज अबाउट भीमपेटका, यानी हमने यात्रा वृत्तांत किसी बात पर लिखा या किसी लेखक ने, राइटर्स ने लिखा, तो किसके बारे में लिखा, तो भीमपेटका। जैसे मैंने कहा कि आगरा, तो यू कैन राइट डाउन ट्रेवलॉग इज अबाउट आगरा। आई हैव रिटन, ही हैज रिटन ट्रेवलॉग अबाउट आगरा। बहुत सारे सेंटेंसेस यू कैन मेक हियर, देयर इज नो लिमिटेशन एट ऑल। Very simple sentence you may use now. This is not a, you see the in English, it is not well known that you just make a very complex sentences so that you could just highlight yourself, I am the super. No. ये नहीं कि हम बहुत एक जटिल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो हमारी इंग्लिश अच्छी होगी. That's not. So now here, before this word meanings there, one thing is to be noted here, Bhimpetka. You see, first of all, you write down all the materials here, whatever it is written. I'm just giving 1 to 2 seconds, 3 to 4 seconds here. You just pause there and write down all the materials, whatever written on the board. जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप उसको अपने नोटबुक में अच्छी तरह से उतार लें ताकि आप उसको विजुलाइज कर सकें, फिर से आप उसको देख सकें. ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए ध्यान से. ओके स्टूडेंट्स, in during the travelogue I just written here Bhimpetka. You see the Bhimpetka. What is Bhimpetka? A series of natural. एक भीमपेटका, पहले आप ये जान जाइए कि भीमपेटका जो है वो भीम के रहने का स्थल. भीम का आपने नाम सुना होगा महाभारत में. अभी आप महाभारत सीरियल भी देख रहे होंगे, उसमें आप देखते होंगे कि भीम का जो है रोल क्या है. कुरुक्षेत्र के मैदान में अभी महाभारत चल रहा है, लड़ाई चल रही है उसमें, और 5 पांडवों में से एक भीम का भी नाम था, जिनको कहा जाता था उनको में 100 हाथियों का बल है. युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब थे, 5 पांडव थे. और उधर कौरव सेना में थे, मेन दुर्योधन और दुशासन का नाम आता है. सो दिस इज अदर थिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द भीम. तो भीम जिस स्थल पर वो बैठते थे, तो भीमपेटका जिस स्थल पर बैठते थे भीम, ये कहाँ, तो उस जगह को, बैठने का जगह का नाम पड़ गया भीमपेटका. भीम के नाम से रिलेटेड आप तो जान गए किस तरह से ये नाम दिया गया यहाँ पर. तो भीमपेटका ए सीरीज ऑफ नेचुरल रॉक शेल्टर्स. रॉक मतलब पत्थर से बना हुआ शेल्टर, आश्रय स्थल यानी गुफा. ठीक है, इन द फुट हिल्स ऑफ द विंध्या रेंज. यू सी द विंध्या रेंज. विंध्या रेंज क्या है? विंध्या रेंज, विंध्या पर्वतमाला आप सुने होंगे, जैसे हिमालय का पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, उसी तरह विंध्या रेंज भी है. विंध्याचल पर्वत जो है उसी एरिया में विंध्या रेंज पड़ता है. कहाँ पड़ता है वो? सेंट्रल इंडिया.
सेंट्रल इंडिया कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? भोपाल। सो ये जो भीमबेटका प्लेस है, ये 45 किलोमीटर भोपाल के साउथ में है, और किस जगह पर है? विंध्या रेंज में है। Isn't it? These caves were inhabited. ये जो गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफा है, ठीक है, जो ये केव्स हैं, गुफाएं हैं, were inhabited over 30,000 years back. इसमें 30,000, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 30,000 वर्ष पहले इंसान उसमें रहा। प्रीहिस्टोरिक, देयर वाज ए प्रीहिस्टोरिक पीरियड। You see the Paleolithic age. I will discuss this one, Paleolithic age, Mesolithic age, concerning the history one in the later classes. After these classes, second classes, I will just going to be explain them. For this moment, you know here, 30,000 years back, the people inhabited there. वहाँ रहते थे. Early humans painted scenes. और उस वक्त के ह्यूमंस किस तरह के थे? वो पेंटेड करते थे, मतलब उन्होंने सीन, बहुत तरह का सीन गुफा के अंदर बनाया उन्होंने, फ्रॉम देयर लाइफ, यानी उनकी जो जिंदगी थी, कैसे वो शिकार करते थे, क्योंकि प्रीहिस्टोरिक पीरियड में दे वेर हंटर। क्या कहते हैं? हंटिंग करते थे, हंटिंग करके शिकार करते थे, अपना भोजन करते थे। यू हैव गॉन थ्रू द हिस्ट्री ऑल्सो, दैट इज कंसर्निंग हियर। सो वहां पर थे, वो अपने जीवन से जो भी घटनाएं, जो भी बातें हुई थी, उसको वो पेंटिंग के रूप में इस भीमबेटका केव्स में बनाकर उसको खूब अच्छे ढंग से पेंटिंग किए हुए थे। तो अभी भी अलाइव वो पेंटिंग खत्म नहीं हुई है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो हाउ दिस मटेरियल यूज्ड स्टिल इट इज अलाइव। ह्यूमंस आर नॉट, but their painting is alive. So how could it be? Just think here. There is also a word mentioned in your book. Whenever you go through the book, there will also a word come, sublime. अब आप पूछेंगे, सर sublime क्या है? तो sublime का मीनिंग है uplifting, inspiring. uplifting कॉमा है, inspiring, यानी कोई प्रेरणा देने वाला। इंस्पायरिंग क्या होता है? इंस्पायर से इंस्पायरिंग होता है, प्रेरणा देने लायक कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो। तो यहाँ पर एक सेंटेंस उससे सबलाइम से बनाया गया है, वो आप देखेंगे। देयर इज समथिंग सबलाइम अबाउट दिस प्लेस। दिस प्लेस किससे कंसर्निंग है? भीमबेटका से। तो जब राइटर्स लिखते हैं उसके बारे में, भीमबेटका के बारे में, तो लिखते हैं कि कुछ ऐसा इस प्लेस में वो पाए हैं। अब समथिंग में क्या है? बहुत कुछ बातें हैं। मान ले कि चित्रकारी हमने देखा, वहां पर पेंटिंग देखा, तो उससे हम इंस्पायर हो गए। बहुत सारे चीज से हम इंस्पायर हो सकते हैं। हम अपने छोटों से या बड़ों से उनके एक्टिविटी को देखकर हम इंस्पायर हो सकते हैं। दैट विल बी मच इंस्पायरिंग। सो हियर दिस वन, देयर इज समथिंग सबलाइम अबाउट दिस प्लेस, यानी वो प्लेस जिसको देखा राइटर ने, वो इंस्पायरिंग था। क्या था? इंस्पायरिंग था। अब एक और आता है, एक और वर्ड आपके सामने स्टार के रूप में दिया गया है, चांस्ड अपॉन। इसको क्या पढ़ेंगे? चांस्ड अपॉन, फाउंड बाय चांस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, फाउंड बाय चांस। अब ये देखिए, चांस्ड अपॉन, फाउंड बाय चांस, इसका मतलब है कि अगर आपको एकाएक कोई चीज मिल जाती है, जैसे आप चल रहे हैं, एकाएक आपको कोई चीज पड़ी हुई मिल गई, तो आप क्या बोलेंगे? एक चांस्ड अपॉन, यानी फाउंड बाय चांस। एकाएक आपको कोई चीज मिला। अनएक्सपेक्टेड, ये वर्ड क्यों होता है? अनएक्सपेक्टेड, आप तैयार नहीं उस चीज के लिए। देखिए, इंग्लिश का वर्ड जो होते हैं वो एक मोमेंट्स के लिए होता है। हर मोमेंट्स में उसको किस तरह से यूज करना है। वर्ड्स जब भी हम जानते हैं इंग्लिश का, चाहे वो लिटरेचर हो या ग्रामर हो, कोई भी चीज हो, किस परिस्थिति में उस
वर्ड्स का यूज किया जाता है, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ रट लेना, पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर तैयार करके याद कर लेना, दैट्स नॉट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ योर स्टडी। स्टडी मीन्स just go through in a very elaborative manner, in a technical manner, in a hectic manner. That's why you will get a very very good output from your preparation. जिस तरह से हमारा इनपुट होगा उसी तरह से हमारा आउटपुट भी होगा। As you said earlier, कंप्यूटर में भी क्या होता है, हम जैसा इनपुट देते हैं वैसा हम आउटपुट मिलता है, जैसा प्रोग्राम को हम इनपुट करते हैं वैसा आउटपुट मिलता है। अकॉर्डिंगली दैट्स वन। सो हियर इज चांस्ड अपॉन, फाउंड बाय चांस। सो एक नाम आ रहा है विष्णु श्रीधर वाकंकर, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, क्योंकि विष्णु श्रीधर वाकंकर का रिलेशन इस भीमपेटका से है, इस भीमपेटका प्लेस से। देखिए अब कहिएगा कैसे, वो इस तरह से कि जब वो ट्रैवल कर रहे थे, विष्णु श्रीधर वाकंकर जब वो ट्रैवल कर रहे थे, भोपाल की तरफ जा रहे थे, तो उनको जो जब एकाएक वो डेंस फॉरेस्ट में जब वो गए ट्रैवलिंग के दौरान, तो उनको एक अनजाना सा जगह मिला। उसमें कुछ भी नाम नहीं जानते थे वो क्या है नहीं है, लेकिन जब आप पूछिएगा कि विष्णु श्रीधर वाकंकर है क्या, कौन है, तो आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्व विभाग से कंसर्निंग। यानी आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि जितनी भी खुदाई स्थल है, कोई प्राचीन स्थल है, हिस्टोरिकल प्लेस है, उसका पता करना, और पता करके उसके बारे में उसका एक्सप्लेन करना, उसको मतलब हिस्टोरिकल प्लेस को उसको गवर्नमेंट के अंडर में चूंकि उसका इंफॉर्मेशन देना कि हमने ये चीज पाया है, कितना साल पुराना होता है, ये कार्बन डेटिंग प्रोसेस से पता किया जाता है। दैट इज यू सी द साइंटिफिक टर्म देयर, कार्बन डेटिंग प्रोसेस। थ्रू दिस दे आइडेंटिफाई हाउ द ओल्ड प्लेस इज देयर। कोई प्लेस अगर कितना पुराना है, 30,000 साल पुराना हो, 50,000 साल हो, 1,00,000 वर्ष पहले हो, तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस से होता है वो। लेटर ऑन दैट इज द साइंटिफिक टर्म, यू विल गो थ्रू दिस साइंटिफिक टर्म इन योर सीनियर क्लासेस। फॉर द टाइम, फॉर दिस मोमेंट आप जान जाए इस बात को। तो आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्व विभाग, पुरातत्व की जानकारी रखने वाले, उसी से कंसर्निंग ये विष्णु श्रीधर वाकंकर। चांस्ड अपॉन, अब देखिए यहाँ ये चांस अपॉन का यहाँ जो है सेंटेंस में यूज किया गया है, चांस्ड अपॉन भीमपेटका इन 1957। 1957 में भीमपेटका जो जगह है, स्थल है, उसका पता लगाया इन्होंने। 1957 की बात है, आज का नहीं। दिस इज नॉट फॉर दिस मोमेंट। सो चांस, तो जब वो भीमपेटका जो 1957 में उनको फाउंड बाई चांस, यानी ये भीमपेटका जो प्लेस उनको मिला, एकाएक उनको पता चला रही ये तो जगह यहां पर है, ऐसा ये तो पुरानी चीज है। तो दैट इज चांस ऑफ। यू कैन ऑल्सो मेक द सेंटेंस इन अदर वर्ड्स ऑल्सो। कैन यू मेक दिस वन चांस ऑफ? You can just also make I chanced upon a tour. I chanced upon a very very historical place. Whenever I visited, I was visiting that very moments. So many things you can make at your own. vicinity, अब देखिए अगला स्टार में दिया हुआ वर्ड आपका vicinity. Vicinity means what? Vicinity means neighborhood, यानी आपके बगल में, सराउंडिंग्स में। मान लीजिए आपका मकान है, प्लेस है, और आपके बगल में कोई चीज, अगर कोई किसी का दूसरे का मकान है तो आप क्या बोलते हैं, नेबरहुड में है, वो रहते हैं हमारे, तो आपके एडजॉइनिंग एरियाज में होंगे, दूर नहीं, आपके नजदीक आजू बाजू में रहेंगे, ठीक है।
तो उसी को बोलते हैं विसिनिटी। इसको कैसे पढ़ते हैं? विसिनिटी। ओके, नेबरहुड यानी बगल में, पड़ोस में। तो ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट इरा, ये आप लाइन देखेंगे अपने बुक में आएगा आपका, ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट इरा के समय में सम स्तूप वेयर बिल्ट इन द विसिनिटी। स्तूप तो जानते हैं बुद्ध से रिलेटेड है स्तूप। तो स्तूप जो बनाया गया था वो बनाया गया था, कहां बनाया गया था? इरा सम स्तूप वेयर बिल्ट इन द विसिनिटी। तो ये स्तूप बनाए गए थे, ये जो बने थे भीमपेटका जगह था, जो फाइंड आउट किए थे आर्कियोलॉजिस्ट विष्णु श्रीधर वाकंकर, जिन्होंने इस भीमपेटका, उसके बगल में, हाँ, उसके सराउंडिंग्स में एक जगह मिला था उनको, नेबरहुड में क्या मिला था? सम स्तूप मिला था उनके बगल में। अब आते हैं बुद्धिस्ट लोड, एक और स्टार में बुद्धिस्ट लोड। बुद्धिस्ट लोड मीन्स क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? ट्रेडिशनल स्टोरीज, यानी पौराणिक कथाएं जो कहानी से संबंधित हो, फ्रॉम बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड हो। ट्रेडिशनल स्टोरी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा ट्रेडिशनल स्टोरी हो, किसी राजा का, किसी महाराजा का या किसी अदर जगह का, वैसा नहीं। सिर्फ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड हो। ठीक है, उसका सेंटेंस कैसे बना यहां देख लीजिए। द रीजन बिकेम एसोसिएटेड विथ बुद्धिस्ट लोड। वो जो भाग हमें पता चला, भूभाग जो हमको मिला, कहां मिला? विसिनिटी, यानी स्तूप जो मिला हमारा, वो किससे रिलेटेड था? बुद्धिस्ट लोड से था। ठीक है, इस तरह से इतने सारे वर्ड्स हैं जिससे आप यू हैव गेट फेमिलियर विद, you are very much familiar with these words, and I'm just telling some more words in the next classes, isn't it? Just wait for a moment. Okay, students, so I have just gone through all the words concerning your chapter. In the next class, next session, we shall talk more about the keywords and the summary of the art rocks. Till then, goodbye and best of luck for the next session. Okay, thanks.